तो क्या आपको भी इंग्लिश बोलने का बहुत मन करता है पर आप बोल नहीं सकते हो? Then you are in the right place. So in this video, I'm going to share with you all my 6-month journey of English speaking. So first, I also didn't know. Okay, so मुझे भी पहले नहीं आती थी इंग्लिश बोलना. फिर मैं धीरे धीरे then I gradually learned how to speak in English. So in today's video I'm going to share with you all how to speak in English in 6 months. I mean, what are the techniques I used while learning English? Okay, so I know you are so interested in learning English, so that's why you are watching my video. So do subscribe to my YouTube channel. I started my journey of English speaking in the year of 2020. The month is January. So after June, July, I'm like, yeah, I can speak now well in English. What are the techniques I used in that 6 months? I'm gonna share in this video. So keep watching this video. It will help you a lot if you don't know how to speak in English. तो मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश में अच्छे से लिख सकते हैं. On a paper you can write well but you cannot speak in front of a person. So जिन लोगों को इंग्लिश में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं बट बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड आई नो दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू a lot. So do subscribe it. Don't think about grammar part, okay? अगर तुम अपने दिमाग में ऐसे सोचोगे कि मुझे ग्रामर अच्छा बोलना है, मतलब अगर ग्रामर में कोई गलती हो जाए तो लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे इंसल्ट करेगा, एंड लाइक दैट इफ़ यू विल थिंक देन तुम कभी सीख नहीं पाओगे. ठीक है, द मेन फोकस ऑफ योर इज टू स्पीक सम सेंटेंसेस इन इंग्लिश एंड नॉट टू केयर अबाउट द ग्रामर पार्ट. तो लोग वही गलती कर लेते हैं पहले, वो है ग्रामर पार्ट को अपने दिमाग में ऐसे बिठा लेते हैं. ग्रामर में कोई गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोग मुझ पर हंसेंगे. तो दैट इज द, एंड ऑल्सो हिंदी इज ऑल्सो नॉट माई मदर टंग. ओके, हंसना है तो हंसने दो. ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट पीपल थिंक, इफ यू विल यूज हेवी वर्ड्स ऑफ इंग्लिश देन पीपल विल थिंक दैट यू आर सो गुड इन इंग्लिश. ओके, तो मैं ये बोल रही हूँ, अगर तुम इंग्लिश में हेवी वर्ड्स मतलब बहुत डिफिकल्ट वर्ड और हेवी वर्ड्स बोलते हो तो लोगों को लगता है कि बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है. तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि in English we don't have to go for the heavy or difficult words. What we have to say is the simple words. Okay, I am also a student of English literature and still I am using the most common words of English. I'm not going for heavy words. You also don't have to use that kind of difficult words because sometimes people don't know what is the meaning of that particular word, means about that difficult word. So you don't have to say difficult or heavy words to make yourself as a fluent speaker of English. You can use normal words. Okay, तुम ऐसे ही मतलब जो हम डेली वर्ड्स यूज़ करते हैं उनसे ही तुम बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हो. तो इसके बाद जो बात है वो है, लोग अक्सर प्रोनाउंसिएशन में बहुत मिस्टेक करते हैं. when they pronounce some words like school, okay, I'm giving one example, that is school. Okay, people call it school. Okay, so it is the most common mistakes of people, so I'm giving this example. So तुम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है, जब तुम इंग्लिश में कुछ बोलोगे तो तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है. जैसे कि इन हिंदी I am Assamese, okay, I don't know how to speak in Hindi, but still I am using some Hindi in between just to make you all understand. So हिंदी में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होते हैं for pronunciation. So pronounce करते टाइम कुछ वर्ड ऐसे हैं हिंदी में जो मुझे बोलने में बहुत दिक्कत होती है. फिर भी मैं ट्राई करती हूँ हिंदी में बोलने के लिए ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए क्या बोलना चाहती हूँ इस वीडियो में, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए. Because of that, I'm speaking in Hindi in between. So the app name is Talk New. So I will show you all how the app looks like in this video. Like in here also I can. जनवरी में मैंने क्या किया था
कि मैं ना अपने रूम में बैठ रही थी और आई वॉज जस्ट थिंकिंग हाउ आई कैन स्पीक इन इंग्लिश सो फ्लुएंटली बिकॉज I watched some video that day, and after watching those videos I started thinking how I can speak fluently in English again and again. After that I searched on YouTube and I found this amazing app एंड द ऐप नेम इज़ टॉक न्यू. जी हाँ, टॉक न्यू है इस ऐप का नाम. आप लोग भी ये ऐप यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखना है. ठीक है, दिस ऐप इज़ सो अमेजिंग गाइज. आई एम द एग्जाम्पल. मैं पहले ऐसे बोल ही नहीं पाती थी इंग्लिश, पर अभी जैसे कि अब मैं खुद नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत मैं बहुत फ्लुएंट स्पीकर हूँ इंग्लिश के, वैसी बात नहीं है, पर एटलीस्ट आई नो नाउ हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. सो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ बीच बीच में कि को मैं ये ऐप रिकमेंड करती हूँ. आप लोग सभी जो इंग्लिश सीखने में बहुत इंटरेस्टेड है, आप लोग ये ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं. एंड दिस ऐप इज़ ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ हेल्पफुल दिस ऐप इज़. एंड इस ऐप में आप लोग रात 1-2 बजे, 3 बजे और सुबह 5 बजे, whenever you need, okay, you want to speak in the morning time like 6, 4, 5, whatever the time is, it doesn't matter at all. Okay, whatever the time is, you can talk with any person. Okay, and I'm talking about night time also. I'm talking about the night time. So at the night time also you can talk. So you will connect to a random person. ओके, तो जो आप लोगों के फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ आप बात नहीं कर सकते. इन दिस ऐप यू हैव टू टॉक विथ स्ट्रेंजर्स, मतलब जिन्हें आप जानते तक नहीं, जिन्हें आपको नाम तक पता नहीं, उन लोगों के साथ आप लोगों को बात करना है. तो अच्छी बात है ना. दे विल नॉट जज यू, दे विल नॉट इंसल्ट यू फॉर योर इंग्लिश. इफ वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर फ्रेंड्स, देन आई एम डैम श्योर दैट दे विल insult you. Okay, so because of that, and also you don't have to think about, now you're so cool and relax about it. Okay, just because of this reason I started talking in this app, because if I will talk with my friends, they will judge me and also insult me and whatever they will do. I know, because friends are like this. Okay, they will judge. Okay, we cannot ignore it. ये बहुत इस ऐप को मैंने 6 मंथ तक, मैंने 6 महीने इस ऐप में मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 2 घंटे टाइम देते हैं इंग्लिश सीखने में. तो ये बहुत गलत बात करते हैं आप लोग. तो यू हैव टू लर्न इंग्लिश लाइक इन द whenever you are free, you have to do one thing, that is speaking English. Okay, मुझे जब भी टाइम मिलते थे तब भी मैं इंग्लिश को सीखनी है. मुझे हर टाइम ऐसा कब इंग्लिश बोल पाऊंगी अच्छे से, मेरी ये एम थी. ठीक है, मेरी ये एम थी कि हाउ आई विल बिकम वन गुड इंग्लिश स्पीकर. ओके, बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज लाइक इन एवरी टाइम आई वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश डे एंड नाइट. या दैट दोज डेज आई प्रैक्टिस्ड ए लॉट. आई एम सेइंग दैट आई प्रैक्टिस्ड ए लॉट, एंड आफ्टर दैट आई एम स्पीकिंग लाइक दिस राइट नाउ. सो आप लोगों को ये ध्यान में नहीं रखना है कि मुझे दिन में सिर्फ 2 घंटे देनी है, मुझे दिन में सिर्फ 5 घंटे देनी है. ऐसी कोई बात नहीं होती. तो आप लोगों को जैसे हो सके वैसे, आप लोगों को जो इजी लगे वैसे सीखो, बट यू डोंट हैव टू स्किप. ओके, स्किप का मतलब होता है कि आप कभी भी इंग्लिश सीखना बंद मत करना. तो आप इंग्लिश स्किप का ये मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं भी ऐसी हूँ. कभी कभी जब मैं इंग्लिश के बारे में कुछ, ये अलग सी बात है मेरे लिए इंग्लिश सीखना, पर ज़्यादातर मैं पढ़ाई लिखाई में भी ऐसे ही करती हूँ कि कुछ दिन अच्छे से पढ़ती हूँ, ठीक है, फिर बाद में ये छोड़ देती हूँ. तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले तो बहुत इंग्लिश सीखने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, फिर बाद में वो इंसान जाके इंग्लिश सीखना छोड़ देते हैं. तो ये काम आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है. तो आप लोगों को डेली, रोज़ प्रैक्टिस करना है. तो व्हाट आई डिड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश क्विकली इज टू स्पीक डेली. So you have to speak daily, on daily, like if you are practicing today, then tomorrow you cannot take rest. Okay,
tomorrow also you have to speak like this, tomorrow also you have to practice, okay? ये बीच बीच में छोड़ देने वाली आदत बदल लो इस सीखने में। और एक बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं हम लोग कि हम ग्रामर पार्ट को बहुत ध्यान में देते हैं। वी ऑलवेज केयर अबाउट ग्रामर पार्ट। ये बात है, आप वो ऐप को इंस्टॉल करें जो टॉक न्यू ऐप है, वो प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाती है। तो उस ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन दैट ऐप। एंड also you can try another thing is that you can record your own voice on your phone and also start listening. You can listen those recordings and also can judge your speaking level and ऐसे ही आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही कुछ मतलब और एक बात बोलनी थी आप लोगों से कि यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द ग्रामर पार्ट, ओके? दैट इज़ द मेन थिंग। यू ऑलवेज थिंक अबाउट ग्रामर पार्ट। I always thought about grammar part in the beginning, but when I start avoiding the grammar part, then I can realize, then I was able to speak English fluently. So यही बात है कि आप पहले अपने ग्रामर को इग्नोर करें और फिर बाद में जाके ये ग्रामर आपके स्पॉन्टेनियस हो जाएगी आपको, क्योंकि ग्रामर वो आप जब बोलने की कोशिश करेंगे तो बाद में वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली। वो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ग्रामर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ठीक है, तो आज के ये वीडियो में मैंने अपनी जो 6 मंथ जर्नी है वो शेयर की। इफ़ यू feel like this video will help you a lot in your future, then do like this video and also give one feedback and also do subscribe to my YouTube channel. So now bye guys.